હેલો વિદ્યાર્થી મિત્રો, નમસ્કાર. ધોરણ 7 માં આપનું સ્વાગત છે. ધોરણ 7 ની અંદર આપણે હિન્દી વિષયની અંદર વિષયાંક લે છે તબ યાદ तुम्हारी आती है એ કાવ્ય વિશે આપણે અભ્યાસ કરીશું. તો સૌથી પહેલા આપણે એક કાવ્યના કવિ આપણે જોઈએ. તો કાવ્યના જે કવિ જે છે એ રામનરેશ ત્રિપાઠી. રામનરેશ ત્રિપાઠી એ કાવ્યના કવિ છે. આપણે રોજ પ્રાર્થના કરીએ છીએ. પ્રાર્થના તો આત્માનો ખોરાક છે. એમ તો આપણે પ્રાર્થના કરીએ છીએ ને, એ પ્રાર્થના એક પ્રાર્થના હોય છે જે આપણે ગાઈએ છીએ. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. ये रामनरेश त्रिपाठी की प्रसिद्ध प्रार्थना છે. हे प्रभु आनंद दाता ज्ञान हमको दीजिए. એટલે આ પ્રાર્થના એ પ્રાર્થના જે છે લોકપ્રિય રામનરેશ ત્રિપાઠીની લોકપ્રિય પ્રાર્થના છે. દરેક શાળા મહાશાળાઓમાં ગવાતી હોય છે આ પ્રાર્થનાઓ. અને બીજું આપણે જોઈએ, રામનરેશ ત્રિપાઠીનો જન્મ 4/3/1889 માં થયો હતો. રામનરેશ ત્રિપાઠીનો જન્મ 4/3/1889. જન્મસ્થળ કોહરીપુર ગામ. જન્મસ્થળ કોહરીપુર ગામ, જિલ્લો સુલતાનપુર, રાજ્ય ઉત્તર પ્રદેશમાં થયો હતો. फिर जन्म है उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में उसका जन्म हुआ था. किसका जन्म? रामनरेश त्रिपाठी का जन्म 4/3/1889 में उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था. उसका निधन कब हुआ था? उनका निधन 16/1/1992 में 16/1/1992 માં તેમનું નિધન થયું હતું. તે કવિ તરીકે પણ જાણીતા છે, ઉપન્યાસ તરીકે પણ જાણીતા છે, ઉપન્યાસકાર તરીકે, નાટ્યકાર તરીકે પણ જાણીતા છે અને આલોચક એટલે કે વિવેચક ગુજરાતીમાં તેને વિવેચક કહેવાય. વિવેચક કહેવાય છે. તેના વિશે પણ જાણીતા છે. તો કવિ તરીકે પણ તેઓ જાણીતા છે, ઉપન્યાસકાર તરીકે. ઉપન્યાસ એટલે કે નવલકથા. ગુજરાતીમાં તેને નવલકથા કહેવાય છે અને હિન્દીમાં તેને ઉપન્યાસ કહેવાય છે. નાટકો પણ તરીકે જાણીતા છે. આલોચક એટલે વિવેચક તરીકે પણ જાણીતા છે. કૃતિઓ એટલે કૃતિઓ કઈ છે, કઈ કૃતિઓની રચનાઓ કરી છે તેના વિશેનો અભ્યાસ કરીએ. તો મિલન, પથિક, સ્વપ્ન અને માનસી. તો મિલન, પથિક, સ્વપ્ન અને માનસી જે છે તે તેમની લોકપ્રિય કૃતિઓ આવેલી છે. અને પ્રસિદ્ધ પ્રાર્થના જે છે આપણે તમને હમણાં જ કીધું, આપણે દરેક મહાશાળા બધામાં આપણે ગવાતી પ્રાર્થના. એ કઈ પ્રાર્થના? હે પ્રભુ આનંદ દાતા જ્ઞાન हमको दीजिए. એ પ્રાર્થના તેમની સુપ્રસિદ્ધ પ્રાર્થના છે રામનરેશ ત્રિપાઠીની. ત્યાર પછી તેને એક સ્વપ્ન નામની જે કવિતા જે છે, સ્વપ્ન પર જે છે હિન્દુસ્તાન પુરસ્કાર તેમને મળેલો છે. સ્વપ્ન પર તેમને હિન્દુસ્તાન પુરસ્કાર મળેલો છે. તો સૌથી પહેલા આપણે શું જોયું? તેમના જીવન પરિચય જોયો કે રામનરેશ ત્રિપાઠી તેનો જન્મ 4/3/1889 માં, जन्मस्थल उत्तर प्रदेश राज्य के सुल्तानपुर जिले के कोहरीपुर गांव में हुआ था. निधन 16/1/1992 માં થયું હતું. તેઓ કવિ, ઉપન્યાસકાર, નાટ્યકાર, આલોચક અને વિવેચક તરીકે જાણીતા છે. તેમની કૃતિઓ કઈ છે? તો મિલન, પથિક, સ્વપ્ન, માનસી તેમની કૃતિઓ છે. પ્રસિદ્ધ પ્રાર્થના હે પ્રભુ આનંદ દાતા જ્ઞાન हमको दीजिए એ તેમની પ્રસિદ્ધ પ્રાર્થના છે, જેમાં આપણે મહાશાળામાં પણ બોલીએ છીએ, મહાશાળા એટલે કોલેજમાં બોલી પ્રાર્થના ગાઈએ છીએ. पुरस्कार તેઓ स्वप्न पर हिंदुस्तान पुरस्कार ने मिला है. तो हमें इस काव्य में तब याद तुम्हारी आती है, ईश्वर की यहाँ याद होती है. सुबह सुबह का वातावरण कितना पवित्र होता है. भगवान को हम याद करते हैं. सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है और प्रकृति का कण दर्शनीय होता है. सुबह के वातावरण कैसे होता है? खुशनुमा होता है. प्रकृति भी कण में हमें दर्शनीय होता है. हम प्रकृति को जब देखते हैं तो उसमें कण में प्रकृति मिलती है. और रिमझिम बारिश में सुबह का दृश्य मनमोहक और आशाजनक. जब बारिश आती है, सुबह बारिश आती है, उसका आनंद ही कुछ अलग होता है. रिमझिम बारिश
और रिमझिम जब बारिश आती है तो उसका वातावरण कितना अनूठा दिखता है। हम ऐसे स्थान पर जाए, अकेले ऐसे स्थान पर जाए जहाँ कोई न हो, एकदम निराला सा वातावरण हो जाए और हमें वो वातावरण कितना अच्छा खुशनुमा जैसा आकर्षित कर देता है, इतना आकर्षित कर देता है कि हमें वहां बैठने का मन ही हो रहा है। मन हम बस अकेले यहाँ बैठे रहे, बस किसी और के साथ कोई चर्चा नहीं, कोई हम संसार की माया को भूल जाते हैं और यहाँ बैठे रहे, हम प्रकृति का आनंद लें, प्रकृति को हम देखते रहे और सुबह का वातावरण कितना चहकता होता है। चिड़िया जब चहकती है, चिड़िया चहकती है, पक्षियों की जो कलरव होती है, जो हमें अच्छी लगती है, वो सुबह कितनी अच्छी लगती है। सुहाना शांत वातावरण होता है, पक्षियों की कलरव होती है छोटी, फिर हम उस वातावरण का आनंद उठा लेते हैं। प्रस्तुत कविता में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। जब बहुत सुबह चिड़िया उठकर कुछ गीत खुशी के गाती है, कलिया दरवाजे खोल खोल कर जब दुनिया भर खुशबू गाती है। जब सुबह होती है तब चिड़िया चहकने लगती है, चिड़िया बोलने लगती है, दाना चुगने चली जाती है चिड़िया, खुशी के गीत गाती है। सुबह सुबह का वातावरण खुशनुमा होता है तो खुशी के गीत गाती है और दाना चुगने चली जाती है। कलिया दरवाजे खोल खोल कर हम देखते हैं कि हमें यहाँ चिड़िया जब अपने घोंसले से बाहर निकलती है तब चिड़िया खुशनुमा वातावरण में चहकने लगती है, आनंद चिलचिलाहट करने लगती है, गीत गाने लगती है। खुशबू की लहरें जब घर से बाहर आ दौड़ लगती है, खुशबू की जो लहरें हैं जो जब घर से बाहर आ दौड़ लगाती है, हे जग के सृजनहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। क्या कहते हैं यहाँ कि खुशबू की जो लहर है, अच्छी सी जो लहर खुशबू, उतना मनोहर वातावरण, इतना अच्छा सुहाना वातावरण हमें कितना अच्छा मिला है, इतना अच्छा वातावरण की खुशबू आ जाती है। हम घर से बाहर आ दौड़ा के जब रिमझिम बारिश होती है तो हम वहाँ खुशनुमा वातावरण में आगे आ जाते हैं घर से बाहर, और कितना अच्छा सुहाना वातावरण मिलता है। तब हम भगवान हे प्रभु आपको याद करते हैं, तब याद तुम्हारी आती है, तब याद तुम्हारी आती है। जब छमछम बूंदें गिरती है बिजली चमचम कर जाती, मैदानों में वन बागों में जब हरियाली लहराती है। जब छमछम बूंदें गिरती है, बिजली चमकती है बिजली मैदानों में वन बाग बगीचे में जब हरियाली छा जाती है। हरियाली सरस बजा खेतर में जब हरियाली छा जाए, वरसाद પડ્યા પછી એ બુંદ જમીન પર પડે છે તો જમીન એકદમ હરિયાળી થઈ જાય છે, મેદાન અને વન બગીચાઓ એકદમ હરિયાળા થઈ જાય છે અને સરસ મજાનું વાતાવરણ એ વીજળી પર ચમકવા લાગે છે અને આ અદ્ભુત સુહાનું વાતાવરણ મને આકર્ષિત કરે છે અને તબ યાદ તમારી આતી है। जब ठंडी ठंडी हवा कहीं से मस्ती होकर लाती है, ये जो के सृजन प्रहार प्रभु तब याद तुम्हारी आती है। कहते हैं जब ठंडी ठंडी हवा लहरो एकदम लहर होय, એ લહેર સરસ મજાની લહેર આવતી હોય, આપણને એ ઠંડી આપણને આકર્ષિત કરી દે છે કે અહીંયા બેસી રહીએ અને આનંદ માણીએ પ્રકૃતિનો અને મસ્તી ઢોકર આતી કે બોજ ઉઠાના ઢોકર આતી है કે બોજ જે ઉઠાના એક દૂર થઈ જાય છે અને અહીંયા જ આપણે અહીંયા બેસી રહીએ આનંદ માણીએ એવું અમને લાગી રહ્યું છે। हे जगत के सृजनहार प्रभु, सृजनहार એટલે કે સૃષ્ટિનો રચનાકાર સૃજનહાર, લહર એટલે તરંગ ઝોકા, જ્યારે મસ્ત મજાનો પવન આવતો હોય ધીમો તે પાણીની લહેર કેમ ધીમે ધીમે આમ ઘુમાડો ખાતી હોય એ રીતના સરસ મજાનું ચિત્ર પ્રાકૃતિક દ્રશ્ય લાગતું હોય, એવું સરસ મજાનું પ્રાકૃતિક જે દ્રશ્ય જે છે એ દ્રશ્ય આપણને જોઈને કેટલો આનંદ થાય છે, કેટલો અદ્ભુત આનંદ થાય છે કે આપણે ત્યાં જ બેસી રહીએ અને ત્યાં જ રહીએ, वान बगीचों बदल क्या बिसरे। तो इसका प्रस्तुत कविता में सुबह का वातावरण कितना अच्छा होता है। आपको एक पता है कि गुजराती में निबंध आता है शियाळानी सवार कितनी सरस मजानी હોય છે, કૃષ્ણમાં વાતાવરણ ઠંડી મસ્ત મજાની ઠંડી હોય અને ગુલાબી ઠંડી હોય ને આપણને અહીંયા બેસી તો ગમે, મજા આવે, आनंद आवे। इतना सुबह का वातावरण इतना अच्छा होता है, सभी लोग अपने काम में चल जाते हैं, प्रकृति का जो वर्णन है प्रकृति बहुत अच्छी तरह से खिल उठती है, आकर्षित हो जाती है, सब लोग आकर्षित हो जाते हैं।
चिड़िया जो है, पंखी जो है, पंछी जो है वो आकाश में उड़ने लगते हैं, चहकने लगते हैं। सुबह सुबह का वातावरण, शाम का वातावरण कितना सुहाना लगता है, आकर्षित लगता है। उस वातावरण में हम इतना अच्छा और मनभावन वातावरण होता है कि हम वहीं बैठे रहिए। मैदान, बाग, बगीचा भी, जब बारिश होती है, छमछम बारिश, तो बाग, बगीचा और मैदान सभी हरियाली छा जाती है, सभी जगह हरियाली छा जाती है। फिर खुशबू की लहर, सुगंध होती है, पवन की मंद लहरों की हमें सुगंध फैलाती है, घर के बाहर निकाल कर आती है। और फिर हम कहते हैं ठंडी ठंडी हवा लगती है, तब हम मस्ती में आकर झूमने लगते हैं। और तब याद हमारी प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है, हे सृजनहार प्रभु, तब याद तुम्हारी आती है। तो हमने इस कविता में प्रकृति का वर्णन किया गया है, सुबह का वातावरण कैसा है उसके बारे में अभ्यास किया हमने, कवि का परिचय दिया, रामनरेश त्रिपाठी कवि है। तो हम यहाँ आपको एक होमवर्क देते हैं। तो होमवर्क में आपको है, होमवर्क में शब्दार्थ लिखना है, शब्दार्थ, और शब्दार्थ के बाद आपको अभ्यास है। तो अभ्यास के प्रश्न नंबर 1, और स्वाध्याय का प्रश्न नंबर 1 और 3 एक बार हिंदी की बुक में लिखना है। तो आपको जो होमवर्क दिया गया है वो होमवर्क आपको हिंदी की बुक में लिखना है। देखिए, स्वाध्याय शब्दार्थ अभ्यास प्रश्न 1, स्वाध्याय प्रश्न 1 और 3 एक बार हिंदी की नोटबुक में लिखना है। तो कविता को समझ में आई? कविता में किसका वर्णन है? प्रकृति का वर्णन। प्रकृति का तो वर्णन है ही, पर सुबह का वातावरण का वर्णन है इस कविता में। हरियाली सुबह होती क्या क्या होता है? तो सुबह होती चिड़िया दाना चुगने चली जाती है, खुशी के गीत गाती है, बारिश छमछम बूंदे गिरती है, बिजली चमकती है, और मैदान और बागों में हरियाली छा जाती है, ठंडी हवा मस्त होकर आती है, और लहरें भी अच्छी तरह से आती है कि घर से बाहर भी निकल जाए। और मैदान में हरियाली कब छा जाती है? जब छमछम बूंदे बरसात की गिरती है, और बरसात की जब बूंदे गिरती है तो हरियाली छा जाती है, खेत में अनाज अच्छी तरह से पैदा होते हैं, और हमें वो अनाज खाने के लिए मिलता है। आपको प्रभु की याद कब आती है? जब याद तुम्हारी आती है। जब याद कब आती है? तो जब चिड़िया सुबह उठकर खुशी के गीत गाती है, कलिया कर मुस्कुराती, कलिया यानी कि जो फूल की जो पंखुड़ियां है, पंखुड़ियां एकदम खिल उठती है, तब याद तुम्हारी प्रभु आती है। तब याद तुम्हारी आती है, छम बूंदे गिरती है, जो बिजली चमकती है, मैदान और हरियाली में मैदान और बाग में हरियाली छा जाती है, ठंडी मस्त हवा आती है, और तब याद तुम्हारी प्रभु आती है। फिर उसके बाद तुम सुबह में उठकर क्या देखते हो? सुबह उठकर हम क्या देखते हैं? सुबह उठकर भगवान का नाम लेते हैं। भगवान का नाम लेके ही हम सुबह उठकर प्रकृति का सौंदर्य मानते हैं, अच्छी तरह से आनंद उठाते हैं। हम ऐसे नहीं लिखना सुबह उठकर मैं मोबाइल देखता हूँ, भगवान को नहीं देखता, व्हाट्सएप देखता हूँ, ऐसा नहीं। सुबह उठकर भगवान को याद करना चाहिए, नहा धोकर पूजा पाठ करना चाहिए, फिर नाश्ता करना चाहिए, फिर हमें जो हमारा जो नैतिक कार्य है, दैनिक जो कार्य है वो हमें करना चाहिए। तो आपको इस कविता में आपको समझ आ गया कि कविता में क्या किसके बारे में कहा गया है। ऐसी कविता है, चिड़िया खुशी के गीत कब गाती है? जब प्रकृति का सुहाना वातावरण होता है तब खुशी के गीत गाती है। सुबह होने पर प्रकृति में कैसे बदलाव आते हैं? अलग अलग प्रकार के बदलाव आते हैं।
पृथ्वी पर हरियाली कब छा जाती है? जब बारिश होती है, तब मैदान और बागों में हरियाली छा जाती है। हरियाली कहाँ कहाँ दिखाई देती है? मैदान और बागों में दिखाई देती है। तो आज का लेक्चर यहाँ हम समाप्त करते हैं। तो हिंदी में तब याद तुम्हारी आती है काव्य भूमिया समाप्त करते हैं। और आपका धन्यवाद, आभार, आपको अच्छा लगा, धन्यवाद।